Hi guys, today we are discussing communication, my favorite topic and subject and course. Communication, a very famous sentence of Amin Khalid from Business Communication book. Communication is life and life is communication. Right? So we are discussing what is communication and components of communication. Let's start. If you see the simple definition of communications, it's a process of sending and receiving messages, right? Through verbal and non-verbal communication. So communication is exchange of views, thoughts, opinion, ideas, suggestion, proposal, right? So whether between two minds or among a different school of thoughts. So simple definition of communication, as we have discussed, to exchange views or opinion or talking or sessions, that's communication, right? So if we discuss what includes in communication, best communicator. So to my mind, in all kinds of communication, we have four factors, right? Four factors. If we have these four factors, you have better communication. Communication के जो foundation है, the primary concern of communication, we have four factors. One is clarity. Those persons, they have clarity in their thoughts or in their voice, they have better communication skills. Communication skills किन लोगों के अच्छे हो सकते हैं, whether you have Urdu or English or Arabic or any other language. So first we have clarity. We have two types of clarity. One is clarity of sounds, right? Number second, clarity of thoughts and ideas. जो आप कह रहे हैं वो भी क्लियर हो और जो आपके थॉट्स हैं उसके अंदर भी क्लैरिटी होनी चाहिए. In all segments of life, those persons, they do not have clarity, right? In their thoughts, in their voices, they are not good communicator. तो first element जो communication का आता है, one is clarity आएगा, right? Whether it's a written communication or oral communication. Number second, we have convincing skills. Those persons, they have effective communication, convincing skills होंगे उनके अंदर. और जो जॉब्स हैं दुनिया के अंदर, more than 70% jobs are based on convincing skills. लाइफ का जो भी सेगमेंट ले लेंगे, उसकी जो फाउंडेशंस आती है सक्सेस की, वो कन्विंसिंग स्किल्स में आती है. Can you convince yourself first? This is question. If you convince yourself, then you can convince the entire world. ये कम्युनिकेशन का पार्ट आता है. Number third is we have reasons and logics. Convincing जब भी हो सकती है when you have reasons and logic power. And reasoning skills and logical evidence, justifications, right? If you have these elements, then you have more convincing skills. So first we have discussed clarity. Number second we have convincing skills. Number third is reasonings and logics. तो जो थ्री हमने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, थ्री डोमेन डिस्कस किए हैं कम्युनिकेशन से, ये आप ले सकते हैं बेसिस ऑफ बायोग्राफीज. दोस्त दे आर बेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, the greatest personality of the world, whether they are religious people, political leader, or they were fighters, warriors, or rulers. उनकी लाइफ स्टोरी डिस्कस करने के बाद आपके अंदर थ्री फैक्टर्स आ सकते हैं. So these all are the four elements. If you want to improve your communication skills, so these four elements are important for you, right? If you just observe. So we are discussing convincing skills. हमने एक आज वन कंपोनेंट लिया है कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन में काफी सेगमेंट्स हैं, उनमें से वन क्या है? Convincing skills or convincing potential. और convince जब भी कर सकते हैं. One is clarity. Number second, you have reasons and logics. और आपके बैक में आपने काफी biography स्टडी की हैं. So we have different kinds of jobs in the world. One is a law, right? Lawyers, barristers, advocate, and judges. If we discuss the foundations of this field is based on the reasons and logics. Again, we have convincing skills. दुनिया में जितने भी लॉयर्स होते हैं उनमें से कुछ लायर भी होते हैं और बेसिस ऑफ देयर कन्विंसिंग रीजंस लॉजिक वो जो है विन कर जाते हैं, राइट? सो इस फील्ड में जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में काफ़ी जो पॉइंट्स हैं उनमें से वन क्या है? कन्विंसिंग है. और आज मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा. जितने भी लाइफ के सेगमेंट्स हैं उनमें कन्विंसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? सो एंड कन्विंसिंग बेसिस ऑफ रीजंस एंड लॉजिक्स यू कैन डिस्कस. नंबर सेकेंड इज ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. दुनिया में जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मैसेज को, पब्लिक को कन्विंस करते हैं. इवन वो गलत भी बोल सकते हैं उसमें, बट नॉर्मल पर्सनालिटी, राइट? दे हैव सॉलिड रीजंस and people they follow them,
वन ऑफ देम इज कायदे आजम, राइट, यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो बेसिस ऑफ देयर कन्विंसिंग स्किल्स. कायदे आजम ही वॉज नॉट आर्मी चीफ और ही वॉज नॉट मीन्स इनको गन भी नहीं चलाने आती थी, लेकिन पावर ऑफ स्पीच कैसे थी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पर्सन को कन्विंस कर लिया था. सो कम्युनिकेशन स्किल थे वहाँ पे. एज वी हैव डिस्कस, कम्युनिकेशन में काफ़ी सेगमेंट्स हैं. वन इज कन्विंसिंग होते हैं. बेसिस ऑफ रीजंस, लॉजिक, करेक्टर एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्लानिंग, वो अचीव कर लिया था. बट माई टॉपिक इज इन कम्युनिकेशन वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स. वन इज कन्विंसिंग स्किल्स, राइट. सो इन ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जितने दुनिया में पॉलिटिशियंस हैं वो कन्विंस करते हैं और कन्विंसिंग बेस पे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, गवर्नर होते हैं, डेप्यूटी हैं, कंट्रोलर हैं, MNA, MP है, एंड दे गेट a governmental position, they enjoy governmental position. Number next is we have religious leaders or religious scholars. All religious scholars and religious leaders, they have a communication skills. उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं. कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग स्किल्स है. दुनिया में आपको जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स मिलेंगे वो एक ही बात करते हैं, ये बैड हैबिट्स हैं, बैड डीड्स हैं, इन्हें आप छोड़ दें. गुड हैबिट्स हैं, गुड डीड्स हैं, इन्हें अडॉप्ट कर लें आप, राइट. और जो जितना ज़्यादा कन्विंस करता है, ही हैज़ मोर फॉलोअर्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स होते हैं उनके. अगेन वी हैव अ कन्विंसिंग. और कन्विंस कैसे कर सकते हैं, रीजंस, जस्टिफिकेशन, character. If you follow yourself, character, you can do many more things. Is it clear? So we are discussing communication. In communication we have 3 and 4 segments. One of them is convincing. Second we have दुनिया में जितने motivational speakers हैं including Pakistan, so ये भी convince ही करते हैं audience को. Whether Qasim Ali Shah, right one, from India Sandeep, and from Pakistan Atif Sheikh and more people, they have a convincing है. वो अपनी डिस्कशन से, एविडेंस से, एग्जाम्पल से, लॉजिकल रीजनिंग से ऑडियंस को कन्विंस कर लेते हैं, राइट. वन इज होपफुल एंड होपलेस. दोनों सिचुएशन डिस्कस करेंगे और दे विल कन्विंस यू बेसिस ऑफ सॉलिड रीजंस एंड लॉजिक. गेटिंग माय पॉइंट. सो इन कम्युनिकेशन से वन सेगमेंट बैकबोन है, द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्विंसिंग है, एंड मोस्ट ऑफ द पर्सन दे डू नॉट फील दैट दे हैव दिस एलिमेंट्स. Number next idea we have all kinds of interviews, whether you have done MBBS, LLB or PhD, right one. So we have 2 segments of life. We have 2 type of people. One is those that they have business. Number second, those they will do job. Whether you have job or you have your business, अपने दोनों प्रोसेस से गुजरना है. तब इंटरव्यूअर्स होंगे, इंटरव्यू कहलाएंगे. इंटरव्यू में आपने कन्विंस करना होता है 3 मेंबर्स को, 4 मेंबर्स को. आई एम टैलेंटेड, अपॉइंट मी. मैं टैलेंटेड हूँ, स्किल्स है मेरे अंदर, पोटेंशियल है मेरे अंदर, और जो आपकी जॉब है, कंपनी है, फर्म है आपकी, मैं इसको अपनी कंट्रीब्यूशन करूँगा और इसको आगे लेके जा सकता हूँ बेसिस ये पोटेंशियल, राइट. सो विदिन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स आप बिल्कुल गेम चेंज कर देते हैं. गेम चेंजर कहते हैं इसे इंटरव्यू में, इफ यू हैव कन्विंसिंग स्किल्स. नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दे हैव नॉलेज बट दे डू नॉट हैव कन्विंसिंग पावर. नॉलेज को सही अप्लाई नहीं कर पाते. राइट नॉलेज फॉर राइट प्लेस. सेकेंड, इफ यू डिस्कस पर्सनल लाइफ, दुनिया में जो पर्सनल लाइफ है, लव अफेयर है, जो लोग इसमें फेल हो जाते हैं, अगेन वो भी कन्विंस नहीं कर पाते अपनी बातों से, अपने कैरेक्टर से, अपने नॉलेज से, अपने बिहेवियर से, एटीट्यूड से, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे अपोजिट जेंडर को, राइट वन. सो यहाँ पर भी इशू हो सकता है. नंबर ऑफ पर्सन दे गेट फेलियर बेसिस ऑफ दिस रीजन. नंबर नेक्स्ट है दुनिया में जितने भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वेदर मेल और फीमेल, ये फर्स्ट एलिमेंट में आते हैं. इफ दे आर टैलेंटेड, दे हैव कम्युनिकेशन, और दे हैव इन कम्युनिकेशन दे हैव कन्विंसिंग. तो 70% जॉब जो है और 70% बिजनेस को प्रमोट करते हैं. आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो उनके ऑनर से नहीं मिलते आप. You do not go inside unless you discuss the receptionist. रिसेप्शनिस्ट आपको जो है वेदर मेल या फीमेल है, आपको कन्विंस करते हैं, रीजन देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पॉलिसीज बताएंगे, एक लिहाज से हमको कन्विंस कर रहे होते हैं वो. एंड यू विल बी कन्विंस. इफ यू डिस्कस अबाउट टीचिंग फील्ड और एजुकेशन फील्ड, ऑल प्रोफेसर्स एंड ऑल टीचर्स, ऑल इंस्ट्रक्टर्स, वो अपनी टीचिंग के जरिए जितने भी ऑडियंस हैं उनको कन्विंस करते हैं. नंबर सेकेंड इज दे हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट.
जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन में वो क्लैरिटी के साथ डिस्कस करते हैं. इफ दे डू नॉट हैव क्लैरिटी दे आर नॉट गुड टीचर्स एट ऑल, दे आर नॉट गुड इंस्ट्रक्टर एट ऑल. सो वेदर वी हैव डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ और वी हैव डिफरेंट जॉब्स, हर जॉब के अंदर आपको कम्युनिकेशन मिलेगी एंड हर जॉब में कन्विंसिंग स्किल्स हैं एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट खिलाएगी. सेकेंड वी हैव कमेंट्री. स्पोर्ट्स में कमेंटेटर्स होते हैं, कमेंट्री होगी. रमीज राजा हैं पाकिस्तान के. ही वॉज नॉट वेरी गुड बैट्समैन. जावेद मियादाद, ही वॉज ब्रिलियंट बैट्समैन. बट दुनिया जो है अब जो है रमीज राजा को जानती है, जावेद मियादाद को कम जानती है. रीजन इज रमीज राजा हैज मोर कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनके. और कम्युनिकेशन भी ऐसे हैं जिसमें रीजन है, एविडेंस है, जस्टिफिकेशन है, कन्विंसिंग स्किल्स कहलाते हैं. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्लैरिटी ऑफ वॉइस कहला सकती है. सो होपफुली आर गेटिंग. जावेद मियादाद इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, क्लासिकल बैट्समैन थे. रमीज राजा उनसे अच्छे बैट्समैन नहीं है. बट इन 2020 एंड 2021 ही इज मोर फेमस देन जावेद मियादाद basis of his communication skills. Next we have talk shows. दुनिया में जितने भी टॉक शो होते हैं, जितने भी एंकर होते हैं, राइट वन, सो वन साइड दे हैव कम्युनिकेशन. और अपने रीजन से, अपने टॉक शो से, अपनी एविडेंस से, अपने कमेंट से, अपनी ओपिनियन से वो ऑडियंस को कन्विंस करते हैं जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ आपको. लिसन टू मी, व्हाई? बिकॉज आई हैव एविडेंस, आई हैव क्लैरिटी. जो भी डिस्कशन है उनके डिस्कशन में क्लैरिटी है, एविडेंस है, जस्टिफिकेशन है. वो ये नहीं कहते हैं आई एम सेइंग, वो रिपोर्ट लेके आते हैं. WHO की रिपोर्ट है ये, स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है. वो ऑडियंस को कन्विंस कर लेते हैं, राइट. नंबर नेक्स्ट पे हम, सो दिस ऑल आर द कन्विंसिंग बेसिस ऑफ कन्विंसिंग स्किल्स. अपार्ट फ्रॉम दीज फोर डोमेन्स ऑफ लाइफ, four domains of communications, we have different segments of communication. This is my first video on communication skills. So one by one we are discussing communication. Today I discuss only one idea, what does communication mean और इसकी expansion क्या है, कहाँ पे use कर सकते हैं. So in the very first I said one sentence, life is communication and communication is life. It was spoken by Amin Khalid, a business communication book, a very famous sentence and a universal sentence. हर सेगमेंट में जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की नीड होगी आपको. एंड इन कम्युनिकेशन स्किल वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स. अच्छा देखिए, दुनिया में वी हैव वन मिसकंसेप्शन इन पाकिस्तान एज वेल एज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. कई लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है बट दे आर नॉट गुड कम्युनिकेटर. टू बी ब्रिलियंट एट इंग्लिश स्किल्स इज समथिंग एल्स एंड टू बी कम्युनिकेटर इज समथिंग एल्स. सो कम्युनिकेशन का मतलब जो हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे, इफ यू हैव दीज 4 पोटेंशियल और स्किल्स, वेदर यू स्पीक उर्दू और इंग्लिश और अरबिक और एनी अदर लैंग्वेज, यू आर गुड कम्युनिकेटर, राइट वन. थैंक यू. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम or any confusion, you can write down in comment box. Welcome.